Hello, friends. I am very happy to have with us Dr. Sunanda Verma, who has scored rank 579 in INICT May 2025. So, Dr. Sunanda Verma, first of all, congratulations to you and more than you, your parents. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो कैसा लगा रिजल्ट जब आया पहली बार? was your first reaction? Sir, first of all, I'll take a moment to thank God. First of all, He's Almighty. Then Dr. Zainab and all the teachers who have been a part of my preparation. Most importantly, Zainab ma'am. Great. Then my parents, Hmm. of course, and my brother, my grandfather, and my best friend who is doing MD medicine in UCMS, but still Okay. took time to me to talk, to motivate me. So every one of them, I think that if it's a good rank, it's all attributed to all of them along with me. Okay, great, great, great. Thank you. So you are from which college? Sir, Maulana Azad Medical College. Okay, like me, I am from Maulana Azad Medical College, and my best friends, Dr. Govind Rai Garg, Dr. Sparsh Gupta, Dr. Praveen Tripathi, are from UCMS. Yes. So, So, MC UC friendship is everlasting. yes. Okay. See, this interview video is going to be watched by thousands of students, Dr. Sunanda. So, let's go into detail. Please tell us what were the things which helped you manage, crack this exam? Did you face any challenges or difficulties? Was it your first attempt? There are different components in Cerebellum app. It's not just main videos. We have mission live videos, we have quick revision videos, we have BTR for revision. So, which component you were able to utilize well? When we look at questions, we have examination and discussion, late night PYQ, midday module, grand test. Then we also conduct revision sessions live as marathon sessions. So students have a lot of choice. But Yes. how did you actually prepare yourself for this INICT exam? Okay, sir. So, sir, I'll start by saying that I was a 2017 batch student, Hmm. and after 5-6 months of preparation from a TND, Hmm. I gave my first exam. That was INI November 2023, Hmm. and I got approximate rank of 2000 in that. Okay. So I was okay that okay, it's good rank. It's not so much great, but it's good, and I'll prepare ahead for NEET. So in that journey only, I got severely ill. Like it was pneumonia with pleural effusion. Hmm. So I was so disheartened that I have an exam and I'm ill right now. So and I didn't had any no motivation and everything. I just felt that it is gone. The exam is gone. So Okay. at that time only, a notification of open round of AIMS counseling popped up, Okay. and I thought like this is the last thing I could do. Let's Hmm. just fill it. Okay. And so it was like it was a decision made in very so much no in uncertainty. Hmm. I filled it, and the last option I filled was AIMS Delhi Pharma College, Okay. and somehow I got it. Hmm. And at that time also I was ill, so I remember when I went over there and I joined. At that time also I was not in a condition to walk properly, but I just joined that maybe I actually like teaching a lot, so I Hmm. thought that maybe I have a career in teaching or something like that. Let's see over there. So but still, sir, that thing in Meena, I had that thing I want to do something clinical. Just it was just out of circumstances I've taken that decision. And when I went there, I heard of like AIMS has an aura, sir. AIMS Delhi has an aura. Hmm. So when I went there, I realized I used to see people going to clinics, Hmm. and over there, the first time I heard about Zainab ma'am. Hmm. BTR I came to know from AIMS Delhi. Hmm. So I think that was a blessing in disguise that I Hmm. came to know about Zainab ma'am and BTR the first time over there. And everybody was talking about it. So I was very interested at what it actually is. A single teacher teaching all the 19 subjects. I was very curious to know. Hmm. Then I took it. It took me several months to make a decision to convince my parents to leave that seat Okay. and to prepare again. The guide over there was also very cooperative. He allowed me to leave it because usually guides don't. Hmm. So he also said that okay, you leave, and then in November I Hmm. left it and I started my preparation dedicatedly towards the exams. Okay. So my source was because I have studied during MBBS days. I have studied from a normal platform notes, the big notes which we say the main notes. So I had an idea of the Okay. content. It was not that it was everything was just very new for me. Also, I have done a TND also, and Okay. also I have got a 2000 rank. So I knew थोड़ा थोड़ा तो पता है मतलब baseline है एक. Then आगे in after November, I just ma'am has made a schedule and ma'am has released that schedule from 28th November to 17th March.
मैम का शेड्यूल आ गया था, तो मुझे था कि मुझे इसी शेड्यूल के हिसाब से अब चलना है, जैसा मैम पढ़ा रही है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल आंख बंद करके मैम पे विश्वास करके 5.0 सीरीज स्टार्ट हो रही थी, उसी के साथ पढ़ती गई। तो बीटीआर की मेन वीडियोस देखी, जहां जहां जैसे सपोज कुछ ऐसा लगता था कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुझे और सप्लीमेंट करने की जरूरत है, तो सेरिबेलम के क्विक रिवीजन नोट्स हैं, उसके साथ उसको टॉपिक को पढ़ लिया, थोड़े से रिवीजन के नोट्स देख लिया, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि उस टॉपिक का थोड़ा ब्रॉड वर्जन हो जाए। ठीक है, फिर साथ साथ मतलब मैम की टीएनडी करती गई, ठीक और है, सारी टीएनडी करी, 1 से 5 जितनी भी है सारी टीएनडीज करी। तो उसमें भी सर स्कोर अच्छा आ रहा था, मतलब हमेशा टॉप 100 में ऐसा आ रहा था स्कोर, हमेशा इतना इतना अच्छा नहीं कि टॉप 10 में आ रहा है, पर हाँ 100 में आ रहा था। और मैंने डेडिकेटेडली सर ये फॉलो किया, बीटीआर को बहुत अच्छे से किया, और बीच बीच में सर बहुत जीटीज दिए, ओके, बहुत सारे जीटीज दिए, आई गेस 40-50 जीटीज अभी तक दिए। ओह वेरी गुड। अच्छा, वैसे अगर जैसे हम पीवाईक्यू की बात करें, कुछ स्टूडेंट पहले कहते थे, अब तो शायद सबका व्यू पॉइंट चेंज होने लग गया है टॉपर्स के इंटरव्यू सुन के, तो पीवाईक्यूज के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की क्या? क्या लेट नाइट पीवाईक्यू, मिड डे मॉड्यूल्स, इन पे ध्यान दिया? सर लेट नाइट पीवाईक्यूज किए, वो बीच में मिड डे मॉड्यूल्स भी आती हैं, वो भी किया। हम्म तो उससे सर एक चीज होती है ना, कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें हम्म टाइम नहीं लगाना, ये आ हम्म जाए तो ये एज इट इज है, इसका आंसर ये है, मतलब रिफ्लेक्स में क्वेश्चंस होने लगते हैं, वो हम्म उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओके एक बार ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बन ही रहे हैं, ओके जिनमें दिमाग लगाना है उनके लिए फिर कंसेप्ट पड़ा। ओके। तो डॉक्टर सुनंदा ने क्या ब्रांच सोचा एज अ करियर लेना चाहेंगे? सर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन रेडियोलॉजी या मेडिसिन। रेडियोलॉजी या मेडिसिन, ओके। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, जी सर। पेपर अटेम्प्ट करते हुए, चलो आपने तो इतने साल मेहनत की है, फिर उसे बीटीआर से रिवाइज किया और आपने पेपर भी पहले दिया हुआ था, तो यू हैड अ फेयर आइडिया, बट जी क्या सर। पेपर करते हुए पता चल रहा था कि अच्छा जा रहा है पेपर? सर मैम ना जेन मोड कहती है एक चीज कि हम्म, अलग हो जाओ, कैसा जा रहा है उस चीज से अलग हो जाओ। ठीक है। बहुत मुश्किल है ऐसा करना, लेकिन हम्म, सर क्योंकि एक चीज है कि एम्स की टाइम टाइम कम है, बिल्कुल। नीट में टाइम ज्यादा है, तो हम्म इतने में मैं अपना दिमाग लगाऊं कि कैसा जा रहा है, इतने में अगला क्वेश्चन आ जाता था, तो हम्म इतना मैंने सोचा ही नहीं कि कैसा जा रहा तो है। पर पेपर हाँ, के बाद पेपर के रिकॉल? सर कुछ, मैं एम्स का पेपर ऐसा होता है कि कुछ कह नहीं सकते। मैं जब बाहर आई थी तो मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा कर सकती थी, ठीक है। पर अब सर वो एलमाइटी की ब्लेसिंग्स थी कि अभी भी ठीक रहा। चलो, फिर भी कुछ तो सब्जेक्ट्स होंगे जिनको देख के कॉन्फिडेंस हुआ होगा पेपर में कि ये मेरे सब्जेक्ट्स काफी स्ट्रांग गए हैं। रेडियोलॉजी, ओके। रेडियोलॉजी, मेडिसिन, हम्म सर्जरी, ओके। जो थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ गलतियां करी हैं तो वो मैंने एटिपिकल चीजों में करी हैं, ज्यादा ओके सोचने, ओवर थिंकिंग की वजह से ज्यादा करी है, सही आंसर को भी हटाकर गलत में मार्क किया है मैंने, तो उस वजह से ये मे भी एग्जाम टेम्परामेंट की वजह से हुआ। ओके। पर पर हाँ, आई मतलब थिंक जितना, नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। तो हाँ डॉक्टर सर, सुनंदा क्या नीट पीजी को देंगे? क्योंकि मेरी एडवाइस है आपको देना चाहिए, बिल्कुल सर, दूंगी तो दूंगी पूरी सर। मेहनत से आपको देना है वो। और जी स्टूडेंट्स जो सपोज नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम हु आर गोइंग फॉर आईएनआईसीटी में 2026? इवन फॉर आई नवंबर 20 नवंबर ऑल्सो, ऑल्सो। ऑल्सो फॉर नवंबर। Yes, sir. Sir, any exam, if you have studied for 7 to 8 months properly, it can be हम्म cracked. The first thing. So, ये टाइमलाइन पे मत जाइए कि 1 साल पढ़ना ही होगा, 7 से 8 महीने की अच्छी प्रिपरेशन में भी एग्जाम निकल जाता है, अच्छी रैंक से निकलता है। दूसरी बात कि हम ह्यूमंस हैं, हम सिर्फ पेपर ही, हम ऐसे आइसोलेट होके नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ पेपर ही करना है। तो जैसे बीमारी होती है, हम, मैंने देखा कि बहुत सारी प्रेग्नेंट हमारे साथ स्टूडेंट्स, वो भी पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, और फैमिली इश्यूज होते हैं कुछ बच्चों के, तो एज अ ह्यूमन हमें इन सारे सर्कमस्टांसिस को साथ लेके चलना है, ठीक है। और बिना किसी ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एकदम से अलग कर दें इन सारे इमोशंस को, तो हमें इन सबके साथ हमें स्ट्रांग होकर कोई भी सिचुएशन आए उसको स्ट्रांगली फेस कर कर, और अल्टीमेटली अगर हम बहुत ही ज्यादा उसको बहुत ही मेहनत करते हैं और हार्डवर्क करते हैं तो वो चीज मिल जाती है। तो डोंट, यू शुड बी योर गाइडिंग फोर्स, मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, बाकी जगह से नहीं। बिल्कुल, ये तो तो है। और जाने से पहले एक फाइनल क्वेरी जो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या एक सिंगल सोर्स सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए? सर ये शायद पहले पॉसिबल था, हम्म लेकिन इस जैसे एग्जाम पैटर्न्स हैं वो कुछ ज्यादा मतलब एटिपिकल चीजें पूछ रहे हैं, मतलब वो डेप्थ में नॉलेज पूछते हैं। हम्म तो सिर्फ एक चीज को कह देना कि ये अगर हम
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक रिसोर्स को पकड़ के रखें, उसको हम्म। बहुत बार करें, लेकिन क्वेश्चंस बहुत जगह से करें, ओके। क्वेश्चंस को जगह जगह से सप्लीमेंट करें। इसका जीटी दे दिया, कभी दूसरे का जीटी दे दिया, है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हम बहुत करें और अपने एक सिंगल रिसोर्स पे बहुत बिलीव करके उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, उसी में ऐड करते रहे, तो सर एक अच्छी रैंक हम ला सकते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनंदा, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी को काफी डिटेल में शेयर किया स्टूडेंट्स से। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर।